let's have a quick recap of the previous part. We started with Sadau's operation, and let's have a quick recap from that part. Sadau operates on the American. Sadau returned with his surgeon's emergency bag, turns over the wounded soldier who lies unconscious. Sadau ने डिसीजन ले लिया था कि वो उसकी सर्जरी करेगा और वो उस तरीके से ड्रेसअप होकर आया. Washes his back and asks Henna to help him, wants her to give the patient anesthetic, removes the padding from the wound which begins to bleed, and Henna has never seen an operation. She feels like vomiting. Henna ने कभी operation नहीं किया था, उसने कभी anesthesia नहीं दिया था, तो she was not comfortable, but क्योंकि सदाव ने उससे उसकी help करने को कहा, तो she was there all the time beside her husband. और उस टाइम उसको जब वॉमिटिंग जैसा फील हुआ तो she rushed out of the room and retches but returns. Sadau tells Henna to stitch her caught anesthetic and keep it, and sees the bullet in the wound. Henna observes red scars on the soldier's neck, showing he had been tortured. Soldiers mutters about torture in his deep sleep. Sadau removes bullet from the wound. Soldier's pulse grows stronger after the injection. Then Sadau declares that American would survive. Sadau and Henna look after the American. They nurse the American. उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की. His wounds heals and he gains strength. Servants become restless more. Speak loudly and let Henna know their repulsion for the American. और वो जानबूझकर on purpose जो है वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते थे ताकि जो है वो अपने मास्टर्स को ये बता सकें कि वो हैप्पी नहीं हैं उस स्ट्रेंजर के वहाँ होने से. Wish the American to be handed over to the police without any further delay, and they wanted them to hand over the prisoner of war to the police. Servants leave the Sadau's house on the 7th day, and one more incident happened on the 7th day. Let's find out what. Servants leave Sadau's house, do not work that morning. Henna pays their wages, they cry and they leave. Henna hold back her tears. Henna has to do all the household work on her own. Henna wants Sadau to get rid of the American quickly. Sadau promises to do something about it. And the arrival of a messenger on that day. Also, a messenger in the uniform arrives in the evening, and Henna is paralyzed with fright. Feels the servants must have complained, and the messenger has come to arrest Sadau. Her fears unfounded. Old general had been suffering from an ailment. Sadau had been treating him. The general was in pain and had sent for him. और हैना को लगा कि वो मैसेंजर जो है वो इनको अरेस्ट करने के लिए आया है डॉक्टर सदाव को, बट ऐसा नहीं था क्योंकि जनरल को पेन था और उसने मैसेंजर को भेजा था. बट हैना को लग रहा था कि सर्वेंट्स उस दिन चले गए हैं और उन्होंने जाकर पुलिस को बता दिया है. अब उससे आगे की स्टोरी हम आप पढ़ते हैं. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake. और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसे लगा कि ये तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं. और सदाओ ने बताया उसको कि बोला उसको कि अब वो जो है इस स्ट्रेंजर से जो है छुटकारा पाएगा हैना के लिए, क्योंकि हैना बहुत ही ज़्यादा डरती चली जा रही है और उसका पीस ऑफ माइंड भी बहुत ख़राब होता चला जा रहा है. Somehow I must get rid of him. Of course, the general said weakly. I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. और अपने जो ये पूरी इंस्टेंस है जाकर वो जनरल को बताता है और वो अपनी डिग्री के बारे में बताता है और बताता है कि बहुत सारे जापानीज़ ने भी वहाँ से डिग्री ली थी. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी. और बोलता है कि मैं उस आदमी से कोई हमदर्दी नहीं रखता हूँ, चाहे मैं वहाँ पढ़कर आया हूँ और बहुत सारे जापानीज़ भी पढ़कर आए हैं, बट मेरी जो पूरी डेडिकेशन है अपनी कंट्री के लिए है. सदाव सेड. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस. और फिर अपने सक्सेस की स्टोरी बताता है कि मैं जो है बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन और सर्जरी करी जबकि बहुत ही डिफ़िकल्ट था उसे बचाना. तो जनरल एग्री करता है कि येस आई नो दैट्स द रीज़न. तुम मेरी भी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा हो. तुम बहुत अच्छे सर्जन हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो और तुम किसी की भी जान बचा सकते हो. एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन. You are so skilled. You say, you think I can stand one more
such attack as I have had today. वो कहते हैं कि जो पेन मैंने आज फील किया है, तुम क्या सोचते हो कि मैं ऐसा अटैक और फील कर सकता हूँ? नहीं, तुम्हारे बिना मैं नहीं ये फील वो जो है इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता हूँ, और इसीलिए तुम मेरी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा हो. Not more than one, Sadao said. Then certainly I can allow nothing to happen to you. और इसीलिए मैं नहीं कुछ भी तुम्हें होने दूंगा, ये मेरा वादा है. और जनरल की एंग्जाइटी बढ़ती चली जाता है. जनरल said with anxiety and his long pale Japanese face became expressionless. और वो कुछ सोच में पड़ गया, इसलिए उसका चेहरा जो है expressionless हो गया. You cannot be arrested. और वो कहने लगा सदाओ कि तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता. The general said closing his eyes, suppose you were condemned to death and the next day I had to हैव एनी ऑपरेशन. उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करा देता हूँ और वो तुम्हें डेथ पेनल्टी दे देते हैं और मेरे को इमीडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा इतना अच्छा डॉक्टर? तो इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता. देर आर अदर सर्जन्स. दाओ सजेस्ट करता है उसे कि नहीं, और भी सर्जन्स हैं आप की सर्जरी करने के लिए. जनरल कहते हैं नन आई ट्रस्ट. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. और वो कहता है कि काफ़ी सारे जो है वो जर्मन से डिग्री ली है उन्होंने, और वो मैं मर भी जाऊँगा तब भी वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल बोलेंगे. I do not care for their point of view, he sighed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. अब वो कहता है कि जर्मन को तो वो नहीं ट्रस्ट करता है एज अ डॉक्टर, जो भी जर्मन से सीख कर आए हैं, और अगर सर्जरी की बात करें तो अमेरिकन की सेंटिमेंटलिटी को भी वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, बट हाँ उनकी पढ़ाई को अप्रिशिएट करता है, और क्योंकि उसे मालूम है कि डॉक्टर सदाव ने अपनी जो मेडिसिन है वो अमेरिका से सीखी है. देन you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. वो कहता है कि अगर तुम अपने उस prisoner को execute नहीं कर सके, तो मुझे इतना भी पता है कि मैं चाहे unconscious भी होऊंगा तब भी तुम you would not murder me while I was unconscious, और तुम मुझे भी नहीं मारोगे अगर मैं unconscious होऊंगा. तो general laughed. He had an unusual sense of humor. और उसकी बड़ी अजीब सी सेंस ऑफ ह्यूमर थी. ये कोई बात मरने वाली या मारने वाली हंसी की नहीं थी. बट ही स्टार्टेड लाफिंग. एज अ जापानीज, could you not combine these two foreign elements, he asked. और उसको जापानीज़ की तरह बात कर रहा है, और वो कहता है कि ये दोनों एलिमेंट्स को क्या तुम कंबाइन कर सकते हो? सदाओ स्माइल्ड. आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड. मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी. बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को जो है कंबाइन करूँ तो आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. द जनरल शुक हिज हेड. आई हैड रादर नॉट टू बी द टेस्ट केस. और कहता है कि नहीं, मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता इस चीज़ का. ही सेड he felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man would have washed up for your doorstep. और वो बहुत ही ज़्यादा इसको अनफॉर्चुनेट कह रहा है कि ये आदमी कैसे तुम्हारे शोर के पास आ गया. ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है. आई फील इट्स सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली. और सदाओ ने कहा मैं भी खुद ऐसा ही सोचता हूँ. इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू कुड बी क्वाइट, दैट ही कुड बी क्वाइटली किल्ड. और वो कहता है कि बढ़िया होगा अगर इसको जो है चुपचाप मार दिया जाए किसी तरीके से, इस प्रिजनर ऑफ वॉर को. द जनरल सेड. नॉट बाय यू, तुम नहीं मारोगे, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम. बट उसको मारने को की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जो उसको जानता नहीं. आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स. जनरल कहता है मेरे अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं. असैसिन्स होते हैं जो राजा के आने पे कुछ भी कर सकते हैं और मार सकते हैं. सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight for better any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than
that you should leave the outer partition of your white man's room open to the garden while he sleeps. So कहते हैं कि मेरे assassins आएंगे, trained assassins आएंगे, बहुत ही natural तरीके से उसको मारेंगे, और तुम अपने घर का जो आउटर पार्टीशन है उसे खुला रखना, वो वहीं से आएंगे और चुपचाप उसे मारेंगे. सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड. इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. और वो कहते हैं कि वो पार्टीशन तो वैसे भी खुला रहता है, तो बहुत ही नेचुरल लगेगा और वहाँ पे से चुपचाप आ सकते हैं आपके असैसिन्स. गुड, द जनरल सेड जॉनिंग. फिर उबासी लेते हुए जनरल ने कहा बहुत बढ़िया है. दे आर वेरी केपेबल असैसिन्स. और अप्रिशिएट करते हैं अपने असैसिन्स की स्किल्स को, कि वो कहता है कि दे मेक नो नॉइज़, वो कोई आवाज़ भी नहीं करेंगे और इतनी ट्रिक से काटेंगे उसका गला कि इनवर्ड ब्लीडिंग होगी उसको. एंड इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. और तुम चाहोगे तो वो उस डेड बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे. संदाओ कंसिडर्स दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सेलेंसी, ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ हैना. और वो कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया है और ऐसा ही होगा. तो मन में उसने हैना का सोचा कि बहुत ही रिलैक्स हो जाएगी. ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान. और प्लान सोचता रहा और ये सोच लिया उसने कि इस प्लान के बारे में वो हैना को जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाता वो कुछ नहीं बताएगा. ही वुड टेल हैना नथिंग सिंस ही शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस. वो बहुत डर जाएगी असैसिन्स के आने की खबर सुनकर या उनके घर में किसी को कोई मार रहा है, तो इसलिए वो उसको नहीं बताने का उसने मन में सोचा. एंड येट certainly such persons were essentials in absolute state such as Japan. और इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जापान में, जो चुपचाप राजा के कहने पर कुछ भी काम कर सकते हैं. How else could rulers deal with those who oppose them. और रूलर्स कैसे ऐसे लोगों को डील करें जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं. उनके लिए assassins होना तो बहुत ज़रूरी है. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. और वो चुपचाप जाके उसने अमेरिकन को चेक किया. बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ द बेड. बट वो बहुत सरप्राइज था कि वो यंग मैन बेड से बाहर जो है वो घूम रहा था टू गो इन टू द गार्डन. वॉट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड. Who gave you permission to leave your room. और बहुत ही गुस्से में उससे बोला, क्योंकि वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो गार्डन की तरफ जाना चाह रहा था. तो कहता किसने तुम्हें परमिशन दी है इस कमरे से निकलने की. तो प्रिजनर ऑफ वॉर कहता है कि मैं यूज टू नहीं हूँ कि कोई मुझे परमिशंस दे. टॉम सेड गेली, गॉश आई फील प्रीटी गुड अगैन. और टॉम कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ. बट विल द मसल्स ऑन हिज दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. वो पूछता है सदाव से कि जो जहाँ पे तुमने सर्जरी करी है वहाँ पर जो है वो मसल्स हमेशा स्टिफनेस में ही रहेंगी. तो सदाव बाकी सारी बातें भूल जाता है और अपने पेशेंट का पूरा जो है क्वेरी को सॉल्व करने के लिए उसका जो है दिमाग जो है और उसका पूरा कंसंट्रेशन उसी में ही चला जाता है. वो असैसिन्स की बात या फिर उसको इस प्रिजनर ऑफ वॉर को मारने की बात भूलकर वो जो टॉम उससे पूछ रहा है उसका जवाब देता है. नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड. ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार मसाज में डू. और वो उसको चेक करता है तो कहता है कि नहीं नहीं मसाज से जो है ये ठीक हो जाएगा. ही सेड अगर एक्सरसाइज लाइक इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज से नहीं ठीक हुआ तो ये मसाज से तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा. इट वोंट बॉदर मी मच, the younger man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. और उसका चेहरा जो है पहले से बेटर हो गया था और वो कहने लगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है ये मेरे को ज़्यादा बॉदर करेगा. Say doctor, I have got something I want to say to you. और वो कहते हैं मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जैसे जापानी से नहीं मिला होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता. सद्दाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक. और सद्दाव ने बाव किया और बट कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया क्योंकि उसके मन में तो उसे मारने का प्लान चल रहा है. असैसिन्स को बुलाया है उसने. श्योर, आई नो दैट. टॉम वेंट ऑन warmly, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you,
देयर वुडेंट हैव बिन अ वॉर। और वो कहता है कि तुम्हारे जैसे अगर सारे जापानीज़ होते तो कभी वॉर होती ही ना। Perhaps, Sadao said with difficulty, and now I think you had better to go back to bed. Sadao ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, बट और ज़्यादा कुछ ना बोल के उसको बोला कि तुम वापस अपने बेड पे जाओ। He helped the boy back into the bed and then vowed good night, और उसको बेड पे लेटाकर उसने गुड नाइट बोला सदाओ ने प्रिजनर ऑफ वॉर को। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, और सदाओ जो है बहुत ही साउंड स्लीप नहीं ले पाया क्योंकि उसे मालूम था कि जनरल के असैसिन्स आएंगे, और उसको हर आहट पे ऐसे लग रहा था कि असैसिन्स आ गए और उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर को मार दिया। टाइम एंड टाइम अगैन ही वोक थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ द ट्विग ब्रोकन और अ stone displaced in the garden, a noise such as men might make हु कैरिड अ बर्डन। और उसको अंदर से लग रहा था कि जैसे जो भी आहट हो रही थी तो जैसे कि कोई आ गया है और वो कोई भारी चीज़ उठा कर लेकर जा रहा है, कोई आदमी उनके घर में एंटर कर गया है, जो कि उसके मन में था कि असैसिन्स आ गए हैं, उन्होंने टॉम को मार दिया है और वो उसकी बॉडी को उठाकर ले जा रहे हैं। वो मन में ये सब चीज़ें सोच रहा था, जरा सी हल्की सी आहट की आवाज़ से भी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, और उसने एकदम से बोला है ना को ना चाहते हुए कि वो कुछ एक्सक्यूज़ ऐसा बनाया कि उसने खुद ही एंटर करना ज़रूरी समझा उस प्रिजनर ऑफ वॉर के रूम में, क्योंकि उसको अंदर से कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि असैसिन्स आ गए होंगे और उन्होंने अपना काम कर दिया होगा। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन could simply tell Hannah that so the general had directed, but when he opened the door he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep, and he closed the door again quietly. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. और जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर उसने देखा कि बहुत ही गहरी नींद और अच्छी नींद सो रहा है, और वो हैना से बोल रहा है कि अब लगता है ये बेटर हो गया जो इतनी रिलैक्स नींद सो रहा है। ही इज़ स्लीप, ही टोल्ड हैना, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। व्हाट शैल वी डू विद हिम, हैना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन। और हैना सोच रही है, पूछती है सदाओ से कि अब हम इसका क्या करेंगे। सदाओ शुक हिज हेड, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू। और वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ 1-2 दिन में मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता हूँ। जबकि उसको मन में अंदर तो पता था कि उसका सॉल्यूशन उसने ढूंढा है कुछ, बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। और उसने सोचा कि चलो पहली नाइट में जो है जनरल ने असैसिन्स नहीं भेजे हैं तो दूसरी नाइट में भेज देंगे। There rose a wind that night, and he listened to the sounds of the bending bows and whistling partitions. और फिर से जो है वो अगली रात जो है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल नहीं थी, और उसे ऐसे लग रहा था कि कोई आ रहा है ना। वोक टू ought we not go and close the sick man's partition। और उसने पार्टीशन को क्लोज करने की बात करी तो सदाव ने कहा नहीं, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था जनरल को कि वो पार्टीशन ओपन रखेगा, क्योंकि पार्टीशन से ही तो असैसिन्स आएंगे, जो कि बात हैना को तो पता नहीं थी। और हवा से जो है वो आवाज़ कर रहा था, तो हैना चाह रही थी कि उसे बंद कर देते हैं। नो, सदाव सेड, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। और उसने कहा कि अब वो अपने आप अपना काम कर सकता है, तो इसीलिए वो अपने आप कर लेगा अगर उसे अनकम्फर्टेबल होगा तो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। The third night, of course, must be the night. The wind changed to quiet rain, and garden was full of sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of the crash and leaped to his feet. और मौसम बदल गया था, उसे लगा कि अब थर्ड नाइट में आ जाएंगे असैसिन्स, और उस दिन बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, और ज़रा की सी आहट से सदाओ उस दिन थोड़ा सा बेटर सोया, लेकिन उसको फिर जो है ऐसे आवाज़ लगी कि कुछ पाँव की आहट, तो एकदम से घबरा कर वो उठ गया। What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. और उसे ऐसा लगा कि कोई आया है। हैना कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे देखना चाहिए क्या है, और उसकी इतनी ऊंची आवाज़ में बोला कि बच्चा भी रोने लग गया, डर के मारे वो भी उठ गया। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। बट सदाओ ने उसे वहाँ से जाने नहीं दिया और उसका हाथ पकड़ लिया हैना का। सदाओ, शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विद यू। और हैना को कुछ अजीब सा लगा। उसने पूछा, सदाओ क्या हुआ है तुम्हें? डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो। और सदाओ ने उसको बिल्कुल नहीं जाने दिया। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर
एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, और वो इस तरीके का डर सदाओं की आवाज़ में देखकर और जो उसकी पकड़ थी उसके हाथों पे देखकर उसको अंदर से कुछ ठीक नहीं लगा, और उसने कुछ ना बोलते हुए उसके उस डर को फील किया, एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग, और बिल्कुल सांस उसकी रुकी हुई थी और वो वेट कर रही थी. देयर वॉज ओनली साइलेंस. टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड, द बेबी बिटवीन देम, और फिर वो चुपचाप अपना बेड में जाकर सो गए बच्चे के साथ. येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, देयर वॉज द यंग मैन. ही वॉज वेरी गे and had already washed and was now on his feet. और जब अगले दिन सुबह हुआ देखा तो वो जो स्ट्रेंजर है, वो गेस्ट जो रूम में जो रह रहा था, तो वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ था, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा था और उसने शेव भी कर ली थी. ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेज़र, करी नहीं थी शेव करने के लिए, रेज़र मांगा. येस्टरडे नहीं मांगा, और उसने वो शेव करी. आई एम सॉरी, डे बिफोर येस्टरडे उसने जो रेज़र मांगा था उससे वो उसने शेव कर ली थी और वो काफ़ी बेटर लग रहा था उस दिन. आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, और वो बहुत खुशी से बोलने लगा कि मैं अब ठीक हूँ. सदाओ ड्रू हिज किमोनो अराउंड हिज वियरी बॉडी एंड ही कुड नॉट, he decided suddenly go through another night, and it was not that he cared for his this young man's life. No, simply it was not worth the strain. और वो ये नहीं सोच रहा था कि ठीक है कि अब ये ठीक है और ये खुश है, उसको अपनी ही चिंता लगी हुई थी अब सदाओ को, और उसको कोई हमदर्दी नहीं थी उस प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ, क्योंकि वो उनका एनिमी था. यू आर वेल, सदाओ एग्रीड. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it was not been worth fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged, but this is not the season of storm, so you could live there until you saw a Korean fishing boat pass by, and they pass quite near the island because the water is mainly fathoms deep there. और वो चाहता था कि उस प्रिजनर ऑफ वॉर को एस्केप कराए अपने घर से, और उसने उसको कहा कि आज की रात जो है मैं तुम्हारे को जो है, तुम अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, मैं तुम्हें अपनी बोट और कुछ खाना देकर यहाँ से नियर बाय आइलैंड की में भेज देता हूँ, जो कि यूजुअली स्टॉर्म में सबमर्ज हो जाता है, और अभी तो स्टॉर्म भी नहीं है तो इसलिए वो सबमर्ज नहीं होगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कोरियन फिशिंग बोट्स आती रहती हैं जो उस आइलैंड के काफ़ी पास जो है होकर चलाती हैं, तो तुम आसानी से वहाँ से एस्केप कर सकते हो उन कोरियन फिशिंग बोट पे चढ़कर, और वो उस आइलैंड पे कोई भी आता जाता नहीं है, इसलिए तुम अपना कुछ टाइम के लिए वहाँ रह भी सकते हो. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग. डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, और वो देख रहा है ध्यान से कि सदाओ क्या कह रहा है कि मुझे निकालने की और यहाँ से एस्केप करने की बात कर रहा है. आई थिंक सो, Sadao said gently. You understand, it is not hidden that you are here. और तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये अब छुपी बात नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, हमारे घर पर हो, तो ये रिस्की हो सकता है. द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन. ओके, ही सेड सिंपली, और उसने ज़्यादा कुछ सवाल जवाब ना करते हुए बहुत अच्छे से बात को समझ लिया और वो एग्री कर गया सदाओ के साथ. सदाओ डिड नॉट सी हिम अगैन अंटिल इवनिंग, और शाम तक उसने बिल्कुल नहीं देखा, वो अपनी तैयारियों में लग गया. एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, एंड इन इट ही पुट फूड, बॉटल्ड वाटर, उसने खाना डाला उस बोट में, पानी डाला उस बोट में, एंड सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे एज वेल एज 2 क्विल्ट्स ही हैड बॉट एट अ पॉन शॉप, और उसने पॉन शॉप से जो 2 क्विल्ट्स भी खरीदी थी वो भी उसमें रखी. द बोट ही टाइड to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight. No moon था लेकिन अंधेरे में ही वो अपना काम करता चला जा रहा था, उसने फ्लैशलाइट नहीं ऑन की ताकि किसी को पता ना लग जाए. When he came to the house he entered as though he were just back from his work, और एंटर घर में ऐसे करा जैसे वो काम से आया है.
एंड सो हैना न्यू नथिंग, और हैना को इसके बारे में, इस एस्केप प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे कि उसको उन असैसिन्स के बारे में सदाव ने नहीं बताया ताकि हैना को चिंता ना हो, ऐसे ही इस एस्केप प्लान के बारे में भी नहीं बताया। यूमी वॉज हियर टुडे, और हैना बताती है कि आज यूमी आई थी। शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर एंड दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, और वो इतनी मॉडर्न थी उसके बावजूद उसने सिर्फ खाना सद्दाव को परोसा। जैसे कल्चर में होता है कि पहले हस्बैंड को खिलाओ या अपने बड़ों को खिलाओ फिर खुद खाओ। एंड शी वेंट ऑन विद अ साई, शी मिसेस हिम सो द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज़ गॉन, सद्दाव सेड। तो सर्वेंट्स की बात आती है तो सद्दाव कहता है कि कोई बात नहीं, जब ये फॉरेनर चला जाएगा तो सर्वेंट्स भी वापस आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम that night before he went to the bed himself and checked carefully the American's temperature, और उसने अपने कमरे में जाने से पहले अमेरिकन का टेम्परेचर चेक किया। द स्टेट ऑफ द वूंड एंड हिज हार्ट एंड पल्स, द पल्स वॉज इरेगुलर, क्योंकि एक्साइटमेंट की वजह से भी हो जाती है पल्स इरेगुलर। तो उस दिन क्योंकि वो एस्केप करने वाला था, दैट यंग मैन वॉज अबाउट टू एस्केप, और सद्दाव उसकी हेल्प कर रहा था, तो इसीलिए एक्साइटमेंट की वजह से भी उसकी पल्स जो है इरेगुलर थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न, ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड। अब जो है उसका चेहरा जो है वो पेल था, और वो जो स्कार्स हैं वो दिख रहे थे उसके नेक पर। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगैन, और वो सद्दाव से कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी दोबारा से बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सद्दाव सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ऐसी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत ही इनकन्वीनियंट हो रहा है अब तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पर, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him. After all, it was a small one and his own, which he used at night when he was called. और वो पहले hesitate हो रहा था उसको flashlight देने में, but फिर उसने दे दी वो flashlight. If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me. Two flashes at the same instant the sun drops over the horizon, और वो कहता है कि जब दो पहर मिल रहे हों तभी मुझे फ्लैश लाइट डालना, अंधेरे में मत डालना। जब तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए तो दो फ्लैश लाइट को जलाना। डो नॉट सिग्नल इन डार्कनेस इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, और अगर तुम वहीं पर हो और ठीक हो तो बस एक बार मुझे सिग्नल करके फ्लैश लाइट जो है जलाकर बता देना। और अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर जो है तुम फ़िशेस पकड़ के खा सकते हो, बट उन्हें रॉ खाना, फायर जलाकर उनको पकाने का मत सोचना, ताकि नहीं तो दूसरे लोग तुम्हें शायद वहाँ पर पकड़ लेंगे। ओके, द यंग मैन ब्रीद, और यंग मैन ने एग्री किया सद्दाव की इस बात से। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जापानीज़, और उसको जापानीज़ कपड़े डलाए गए, और उसका हेड भी जो है काले कपड़े से कवर कर दिया गया ताकि उसके ब्लॉन्ड हेयर जो है वो विजिबल ना हो किसी को। सो जापानीज़ क्लोथ्स विच सद्दाव हैड गिवन हिम, एंड एट लास्ट मोमेंट सद्दाव wrapped a black cloth about his blonde head. Now Saddaw said, the young American, without a word, shook Saddaw's hand warmly, and then walked quite well across the floor and down the steps into the darkness of the garden. और जो है बिना कुछ शब्द किए बस हाथ मिलाकर जो है वो स्ट्रेंजर वहाँ से चला गया। Once, twice, Saddaw saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. और उसने एक दो बार जो जलाई भी लाइट तो वो समझ आ गया कि उसको वो रास्ता देखने के लिए जला रहा है, और वो किसी ने देखी भी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। He waited until from the shore there was one more flashlight, and then he closed the partition. That night he slept, और उस दिन जो है वो पार्टीशन जो है उसने बंद कर दिया और बहुत आराम की नींद सोया। यू से द मैन एस्केप, द जनरल सेड आस्क्ड फेंटली, और जनरल जो है फेंट आवाज़ में जो है तुम क्योंकि ये बात जो है सदाव ने जाकर जनरल को बता दी कि जो मैन है वहाँ से एस्केप कर गया। ही हैड बिन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, और एक हफ्ता पहले ही एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया था जनरल का, क्योंकि अब वो पेन जो है वो बेयर नहीं कर पा रहा था, और सदाव उसको चेक कर रहा था। सदाव हैड बिन कॉल्ड इन द नाइट फॉर 12 आवर्स। सदाव हैड नॉट बिन श्योर दैट द जनरल वुड लिव, और उसको बिल्कुल पक्का नहीं था कि वो जनरल बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, बट
सदाव बहुत ही अच्छा डॉक्टर था. द गॉल ब्लैडर वॉज much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and he demanded food. Sadao had not been able to ask about the assassins. और पहले तो लगा कि पता नहीं ये जनरल ज़िंदा रहेगा या नहीं, बट फिर वो सर्वाइव कर गया और खाना मांगा और सदाओ में हिम्मत भी नहीं हुई वो असैसिन्स के बारे में जनरल से कुछ पूछे. So far he knew that they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned. और उसको पक्का पता था कि assassins नहीं आए थे और servants भी अब वापस आ गए थे. And Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it. और उसने सल्फर जलाया वहाँ पर ताकि सारी नेगेटिविटी उस वाइट मैन की जो है वो बर्न कर दे in it to get the white man smell out of it. Nobody said anything, or only the gardener was cross because he had not got behind with his with chrysanthemums. और सिर्फ गार्डनर ही है जो थोड़ा सा रिलक्टेंट था और उसने जो है ज़्यादा जो है इस फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा था. Yes, Excellency, he escaped. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken. But एक हफ्ते बाद सदाव को लगा कि अब जनरल से हम बात कर सकते हैं और उसने बोला कि एक्सेलेंसी वो एस्केप कर गया था वहाँ से, prisoner of war. Sadao now said he cuffed signify that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. और वो कुछ ज़्यादा उसके बारे में डिटेल उसने नहीं बताई, सच नहीं बताया पूरा इसके पीछे, और उसे लगा कि जनरल कुछ नहीं बोल रहा है. बट थोड़ी देर बाद जनरल ने खोला अपनी आँख. That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? अच्छा वो चला गया, मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं भेजूँगा किसी को तुम्हारे को उससे जो है फ्रीडम दिलाने के लिए और उसको मारने के लिए. You did, Excellency, Sadao said. Well, the old man said in a tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. हाँ मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, but you know that मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में था, बहुत ही पेन में था. The truth is I thought of nothing but myself. But जनरल ने एक्सेप्ट किया कि मैं अपने अलावा किसी की और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाया. In short, I forgot my promise to you. और उसने बोला कि मैं अपना प्रॉमिस भूल गया जो तुम्हें मैंने दिया था. I wondered, your excellency. और सदाओ ने कहा हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि आप भूल गए हो और आप पेन में हो तो इसीलिए भूल गए हो. It was certainly very careless of me. और जनरल एक्सेप्ट करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस रहा इस चीज़ को लेकर. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म और डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी. और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं अपने देश से प्रेम नहीं करता हूँ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है सिंसियरली नहीं लेता हूँ. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? और जब ये मैटर सामने आएगा पूरी तरीके से तो तुम समझ पाओगे इस बात को, समझ पाओगे ना मेरी इस पूरी सिचुएशन को कि मैंने अपनी ड्यूटीज़ को अवॉइड नहीं किया था बट मैं अपनी पेन की वजह से इसको भूल गया. Certainly, your excellency, said Sadao. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. और इस बात पर उसे समझ में आ गया कि अब जनरल उसकी मुट्ठी में है और वो अब उसके खिलाफ कोई भी और एक्शन नहीं लेगा, ना ही किसी को लेने देगा. और वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि अब उसे समझ आ गई थी कि वो टोटली सेफ़ है. आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी. और उसने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ मैं इसके बारे में किसी से नहीं बताऊँगा. ही सेड to the old general and to your zeal against the enemy. और मैं आपने एनिमी के अगेंस्ट अगर एक्शन नहीं लिया तो ये बात भी मैं ये राज भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा. You are a good man. फिर जनरल ने कहा कि सदाओ तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हारे को जो है अवार्ड मिलेगा अपनी इस अच्छाई का. बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ द ब्लैक इन द ट्वीलाइट सी दैट नाइट एंड
हैड हिज रिवॉर्ड। और उस दिन जब उसने देखा कि उसको कोई रोशनी नहीं दिखी उस आइलैंड में, कोई भी फ्लैश लाइट नहीं दिखी, तो उसको लगा कि उसका जो है अवार्ड अब मिल गया है उसे। देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, नो वन वाज ऑन द आइलैंड एंड हिज प्रिजनर वाज गॉन। और उसको समझ आ गई कि प्रिजनर वहाँ से चला गया है और सेफली चला गया है। डाउटलेस था वो इस बात को लेकर, क्योंकि उसने वहाँ पर जो बताया था कि कोरियन फिशिंग बोट्स आती रहती हैं फॉर द हैंड, फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट। और उसने उसको बोला था कि सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट के लिए रुकना, और वो उसने वैसा ही किया। He stood for a moment on the veranda, gazing out of the sea from whence the young man had come। और कुछ देर के लिए वो वरांडा में खड़ा रहा, और जहाँ से पहले यंग मैन को उन्होंने देखा था वो उस जगह पर ही खड़ा होकर बाहर देख रहा था। एंड इनटू हिज माइंड, और मन में सोच रहा था, अपने दिमाग में सोच रहा था, ऑल्दो विदाउट रीज़न, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन। और उसके सामने बहुत सारे और वाइट फेसेस आने लग गए। द प्रोफेसर एट द हाउस ही हैड मेट हैना, जिसके घर में उस प्रोफेसर का चेहरा उसकी आंखों के आगे आया जहाँ पे वो हैना से पहली बार मिला था। अ डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बिन अ सिली टॉकेटिव वुमेन। और वो बहुत ही डल मैन था प्रोफेसर, और उसकी वाइफ जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और चाहे वो काइंड थी बट वो बहुत टॉकेटिव थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटमी, फिर अपने ओल्ड टीचर को याद कर रहा था जिसने उसे एनाटमी सिखाई थी। हु हैड बिन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी with the knife। and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady। और फिर उसके लैंडलेडी का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा फैट थी। एंड ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका। और उसको बहुत ही डिफ़िकल्टी से अमेरिका में कोई घर मिला, बिकॉज ही वॉज अ जापनीज़, क्योंकि वो जापनीज़ था, और जापनीज़ और अमेरिकन्स एनिमीज़ हैं। तो उसको बहुत ही मुश्किल से घर मिला था। अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिसेस, और अमेरिकन्स जो हैं सद्दाव के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर गुमान करने वाले, और बहुत ही ज़्यादा प्राउडी हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनके माइंड में ब्लॉक्स हैं जापानीज़ को लेकर। एंड इट हैड बिन बिटर टू लिव इन, और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था उसका लिए वहाँ रहना। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, और ये स्पेशली इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझते थे अमेरिकन्स, और दूसरों को इन्फीरियर। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन who had at last consented to house him in her miserable home। और उसको वो उस लैंडलेडी का चेहरा याद आ रहा था जिसने उसको इतना बुरी मिजरेबल कंडीशन में भी अपने उस गंदे से घर में जगह दी, और उसने एग्री कर लिया उसको वहाँ रखना। he had once tried to get to be grateful to her because she had in his last year nursed him। और लास्ट ईयर में उस लैंडलेडी ने उसको हेल्प करी थी, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंजा हुआ था और उसका देखभाल करने के लिए और कोई नहीं था, तो उस लैंडलेडी ने उसकी हेल्प करी, जिसको वो खुद भी बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। और वो जब ख्याल भी रखती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा रिपल्जन के साथ, बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड के साथ ध्यान रखती थी उसका। उसकी काइंडनेस में भी जो है वो प्राउड और वो हेट्रेड झलकती थी। नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। और फिर अब उस प्रिजनर के बारे में वो सोचने लगता है, उसका चेहरा भी बहुत ही ज़्यादा वाइट और रिपल्सिव था, और उसको वो चेहरा याद आता है। हैगर्ड का मतलब है लुकिंग वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ द इलनेस। देन स्ट्रेंज, और फिर वो खुद से ही बात कर रहा है, बड़ी स्ट्रेंज बात है। ही थॉट आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। वो सोचता है कि क्यों नहीं वो उसको मार पाया। तो इसके साथ ही हमारा ये एनिमी चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, और ये कुछ क्वेश्चंस है जिसे आप गो थ्रू कर सकते हो और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो इसके आंसर्स। और उसके अलावा जो एक्सट्रैक्ट्स है, आई विल बी सेंडिंग फ्यू एक्सट्रैक्ट्स, एंड आई हैव ऑलरेडी सेंट यू एक्सट्रैक्ट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स which you are supposed to write in your notebook, so make sure you're writing the answers in your notebook.